So let's move on. So now the full lecture will start. We are going to start our I'm not going to tell you the name of the principle which we are going to do, but maybe the question will tell you what principle we are going to do first. So anyways, we always start with a problem. So this is our problem. Show that there are infinitely many primes. So first of all, क्या आप दोनों लोग prime numbers पढ़ा हुआ है? Everybody is familiar with prime numbers? Yes or no? Ishan said yes. Good. So हमारा question ये है कि हमें show करना है, we have to show that there are infinitely many primes. So let's think about this question. While you are thinking, I will tell you a really cool fact or fun fact about this. You can see a picture on the left side. So this is a picture from a YouTube channel called 3 Blue 1 Brown. And if you see this spiral, these dots on this spiral are nothing but prime numbers. There are more details to it, but you just imagine that coordinate axis given है और हम polar coordinates की बात कर रहे हैं और हम जब इन prime numbers को plot करते हैं तो हमें ऐसा spiral मिलता है जब हम थोड़ा zoom out करते हैं. So you can see there is something cool going on, something beautiful going on. And if you are really interested in knowing why this is happening, why this beauty or natural beauty is coming out from these prime numbers, then I will highly recommend you to go to YouTube and watch that video. Just write down spiral from prime numbers, 3 Blue 1 Brown. And it's a really cool video you can watch. So let's come back to our problem. We need to show that there are infinitely many primes. Let's think about this, how we are going to solve it. If you have seen this question or if you have done this question, then really good. You can share that with us. If not, then let's think about it. I just want to add one detail that every question has this meter, and this meter is telling you the level of the question, hardness. So it will go from easy, medium, hard, very hard. So this, you don't have to give any attention to this. This is just for the record that what type of questions we are doing. So let's think about this. How are we going to do it? Let's think about for a minute or so. Mutabir, you can also write your solution. If you have any strategy or anything, please write it on the chat. Okay, so 1 minute is over. Ishan, do you have any idea? No idea? Okay. I think Mudabir se Mama, once I remember I did this proof some time back. Oh, nice. Nice. So क्या कुछ वेग सा कुछ recall हो रहा है कि कुछ yes, देखा ma'am, हुआ है? we did that by contradiction. Great. Yeah, we are going to use contradiction. Like So you assume contradiction का so आप क्या समझते हो फिर contradiction क्या है? अगर हम contradiction use contradiction is assuming something which opposes what is given in the problem statement, then proving that is wrong, so it proves this problem statement right. Totally correct. So now what will be the opposite statement of the given statement? On that there are finite number of primes. Great. Yeah, that is the way to go about it. So these kind of questions, not like on the face of it, looks like, okay, contradiction ही लगेगा. But whenever हमें दिया हुआ हो कि हमें कुछ show करना है, तो I think now this is our second nature to think like that, okay, what if it is not true? And we actually want to develop that mindset where whenever we are given a question, then
this should be our second nature to think about the contrary. Like, what if this is not true? Are we going to do something absurd? Is math is going to fail? All the exams and everything will fail, or something bad is going to happen. So it's like our second nature, and we also want that you also inculcate that habit. So since you have seen the solution earlier, so I think this will be more palatable for you. कि अभी हम स्टार्ट ही करते हैं कि हमारे पास, हम मान ही लेते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स नहीं है, इसका मतलब हमारे पास केवल फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है। तब हम क्या करेंगे? तब अब ईशान तुम्हारा ट्रैक तो पॉइंट लाइक इट्स स्पॉट ऑन। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? चलो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल बनाते हैं। सपोज मैं आपको बोलती हूँ, जो हमें तो प्रूफ करना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होने चाहिए। सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि Oh, केवल we've 2 ही already प्राइम है। हाँ, क्या ईशान? like we have already assumed that there are finite number of primes, right? हम्म, Yes, that's the first step. यस, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने अज्यूम कर लिया है फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। अब फिर हम क्या करना चाहते हैं इससे? Come to prove this wrong. यस, वी हैव टू प्रूव दिस रॉन्ग। मतलब बाय प्रूविंग समथिंग एब्सर्ड, कि कुछ तो गलत हो गया आगे चल के। यस, बाय लाइक थ्योरी पार्ट ऑफ इज स्पॉट ऑन कि हमें यही करना है। आप प्रैक्टिकल पॉइंट पे आते हैं कि कैसे करना है। तो I was just saying that I'm going to make your life easy. I am going to tell you कि केवल 2 ही प्राइम है यूनिवर्स में। तब आप क्या बोलोगे? एक ही प्राइम से शुरू कर लेते हैं, मान लीजिए एक ही प्राइम है। हाँ, ये भी सही बात, एक ही प्राइम से शुरू करते हैं। सपोज एक प्राइम नंबर है यूनिवर्स में, तो क्या गड़बड़ हो रही है? बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू राइट डाउन कि प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास। व्हाट आर दिस प्राइम? सॉरी फॉर दैट। सो ईशान, क्या तुम मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो प्राइम नंबर्स के? So they start from 2, 3, 5, 7. Okay. No, they go on. 3, 5, 7, ठीक है। तो अब मैंने 11. जब तुमसे बोला कि केवल एक ही प्राइम है यूनिवर्स में, तब क्या गलत है इस स्टेटमेंट में? Like this statement is wrong. The statement itself is wrong. Why? Because you have given me, at least I can see 4 primes written on the screen. Yes. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि 2 एटलीस्ट 2 और 3 तो हैं, 2 तो प्राइम मेथडों को मिल रहे हैं मेरे को। तो ऐसे ही मैं बोलूं कि 4 प्राइम है मेरे पास, सॉरी, अगर मैं ये बोलूं कि यूनिवर्स में केवल 5 प्राइम है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू टेल मी? नो, 7 के बाद क्या आता है बाय द वे ईशान? 11. 11। तो नाउ मैंने बोल दिया कि 4 ही प्राइम है यूनिवर्स में, तब क्या बोलेंगे आप? एटलीस्ट हम देख पा रहे हैं कि 5 प्राइम लिखे हुए हैं सेट में, बाकी आगे क्या है हमें नहीं पता। तो We ये might स्टेटमेंट find another one. या सो whenever we are saying any statement कि या तो 1 है, 2 है, या 3 है, ये 4 है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे एक नया नंबर दे दे रहे हो, एक एटलीस्ट एक सेट दे दे रहे हो जिसमें जो मेरा नंबर है उससे ज्यादा प्राइम तुम दे पा रहे हो। ठीक है, जब मैंने 1 बोला तो तुमने कह दिया 2 और 3, 2 तो प्राइम है ही। जब मैंने 3 बोला तो बोल दिया 2, 3, 5, 7, ये 4 हो गए। जब मैंने 4 बोला तो यू हैव गिवन मी मोर प्राइम्स। तो दिस इज हाउ आई थिंक सिद्धार्थ ने लास्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ट्रायल क्लास का, उसमें मेंशन किया था कि जो हमारा पोयास का प्रिंसिपल है कि स्टार्ट स्मॉल और सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम। तो ये उसी उसी काइंड ऑफ लाइक आइडियोलॉजी का पार्ट है कि जस्ट थिंक स्मॉल, एंड उस स्मॉल केस पे क्या हो रहा है हम काइंड ऑफ वो जनरलाइज करेंगे बड़े केसेस में। अब हमने देखा कि जब भी हम कोई एक नंबर पॉइंट कर रहे हैं, हम उससे बड़ा एक सेट बना पा रहे हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा प्राइम नंबर है। तो दैट इज द थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम दीज सिंपल एग्जाम्पल्स।
नाउ हम ऐसे तो नहीं, हमको प्रूव करना है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि 4 हैं तो हमने 5 दिखा दिए तो हमारा प्रूफ हो गया, या तो फिर हम इंडक्शन लगाएं कि हर n के लिए हम दिखा पा रहे हैं। तो जो कि हम अभी इंडक्शन अभी हमने क्योंकि नहीं किया है, तो हम मे बी इंडक्शन में ये बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन सीख रहे हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के वे में जाए। अच्छा, अभी तो इधर एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हाँ मतलब हम कुछ फाइनाइट नंबर लेके चलेंगे और हमको शो करना है कि कुछ गलत हो रहा है, जैसा कि हम छोटे नंबर्स में कर पाए। ठीक है, तो उसी स्पिरिट में, जो कि आई थिंक कोई भी प्रूफ का एक स्पिरिट होता है, हम उस स्पिरिट में जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब हमने फाइनाइट नंबर लिए हैं प्राइम नंबर के, तो हमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कुछ तो एब्सर्ड हुआ। तो सपोज P1, सपोज मेरे पास केवल n प्राइम नंबर्स हैं, P1 P2 अप टू सॉन Pn, केवल n प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। नाउ हम अपने छोटे केसेस से सीख के आए हैं कि हमें कुछ एब्सर्डिटी दिखानी है, क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट प्राइम होते हैं, हमको इंट्यूशन है कि इनफाइनाइट प्राइम होते हैं। तो हमने छोटे केसेस में देखा कि जब भी हम बाउंड करते हैं चीजों को, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें। तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी अगर जब हमारे पास हमने ये लिस्ट कर लिए हैं अपने n प्राइम नंबर्स, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप to prove that something absurd is happening? Mudabir, if you have any answer, you can also write it on the chat. We can show that any number out of this set is a prime, then we will be able to prove So you want to show that any any number number, out of this हाँ, set is also a prime. okay, good. So you are saying कि मैं नेचुरल नंबर से मैं मतलब सेट ले लूं, नेचुरल नंबर के अंदर तुम बोल रहे हो कि नेचुरल नंबर्स में इस सेट को अगर मैं हटा दूं, तो कोई भी तुम पॉइंट ले लो इस सेट को हटा के, वो प्राइम होगा, क्या तुम ये बोल रहे हो? No, I'm not saying that any number apart from this set is a prime. I'm saying that any number apart from this set, we will have to prove it to be a prime. Then we can आई make. थिंक यहाँ पे ये इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ये आप बोलना चाहते हो कि हम ऐसा एक नंबर दिखाएंगे जो कि प्राइम होगा लेकिन इस सेट से नहीं होगा? क्या आप ये हाँ, बोलना हाँ। चाहते हो? हाँ, तो Yes, आई ma'am. थिंक ये प्रॉब्लम था। एनी जब आप बोलते हैं, इसका मतलब कोई भी उठा लो, हम दिखा Okay, देंगे okay. कि वो प्राइम है। ठीक है, Okay. गुड। तो ये नहीं था, मुताबिक कुछ और बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम दिखाएंगे कि इन नंबर्स के अलावा कोई एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है। वही हमने छोटे केसेस में भी किया था, जब हम दो या एक। तो मुदाबिर, आई थिंक तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज है, तो म्यूट व्हेनेवर यू आर नॉट टॉकिंग। Okay, ma'am. थैंक यू। सो हमने छोटे केसेस से यही सीखा था कि जब भी हमारे पास हम छोटे नंबर लेते हैं, जैसे हमने 3 लिए थे या 4 लिए थे, हमने एक एक्स्ट्रा प्राइम दिखा दिया था। हम इस केस में भी यही करने वाले हैं। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज, पहले छोटे केसेस में तो हमारे पास लिस्ट थी, हम देख पा रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे? हम कैसे एक प्राइम नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि इनसे, इस सेट से इसमें जो भी एलिमेंट्स है उससे अलग हो? So we have to construct a number, suppose I'm going to call it as x, जो कि इस सेट से भी अलग हो और प्राइम नंबर भी हो। Then we are done. ये समझ में आ रहा है? अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा प्रूफ हो गया? Yes or Yes, no? ma'am. Yes, Cool. ma'am. Cool. So think कि क्या हम बना सकते हैं, कैसा नंबर हम चूज करें जो कि इस एक प्राइम नंबर भी हो और इनमें से, इन PIs में से कोई भी ना हो। सो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आप लोग के माइंड में भी आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछती हूँ। आपको लगता है कि ये नंबर x कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको ये PIs को यूज करना चाहिए, कि हम ये PIs को यूज नहीं करेंगे और कोई एकदम अलग से ही कुछ बनाएंगे?
आपका इंट्यूशन क्या बोलता है कि हम इन PIs को ही यूज करके नंबर बनाएंगे कि कुछ और करेंगे? Ma'am, I think we'll use the PIs. हाँ, क्योंकि यही हमको गिवन है। अभी हम जो मान के चले थे कि फाइनाइट नंबर है, तो ये हमको एक कंडीशन मिल गई, एटलीस्ट एक नया इंफॉर्मेशन आ गया हमारे बैग में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई जब प्रूव कर रहे हैं हम इसको कि P1 P2 अप टू Pn ये प्राइम नंबर्स हैं, n प्राइम नंबर्स हैं हमारे हाथ में। अब हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये हमारा ऑब्वियस एक सोच है कि आगे हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो हम इन्हीं नंबर्स को यूज करें, तभी ये मेक सेंस भी करेगा ना, क्योंकि जो चीज हमको हमारे हाथ में है हम वही यूज करें, देन इट मेक सेंस। तो नाउ आई हैव गिवन यू द हिंट कि इन PIs को ही यूज करके हमें कुछ नया नंबर बनाना है जो कि प्राइम हो, इनसे अलग हो। तो अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है ये नंबर? सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। मतलब मैं, अगर मेरे को कोई, मुझे तो इसका सॉल्यूशन पता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता इसका सॉल्यूशन तो मैं सोचती कि से P1 + P2, क्या ये एक नया नंबर हो सकता है जो कि प्राइम भी हो और इनसे अलग भी हो? अब मैं मेरे अंदर, मतलब मैं सोचती कि P1 + P1 + P2 + P3 + P4, केवल 4 को यूज किया या केवल कुछ को यूज किया, पूरा को नहीं यूज किया, या सारों को ही यूज कर लिया समेशन PI। क्योंकि एडिशन इज वेरी नेचुरल टू थिंक, राइट, कि इनसे हमको कुछ करना है, तो हम ये सोच सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट, क्योंकि आफ्टर एडिशन प्रोडक्ट इज मोर नेचुरल। P1 P2 का प्रोडक्ट लिया, या P1 P2 P3 का प्रोडक्ट लिया, या सारे सारे ही नंबर्स को प्रोडक्ट कर लिया। तो ये बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास। अब इनमें से हम कौन सा चूज करें जो कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे? Either the summation of all or the product of all. ओके, सो यू थिंक दैट कि ये जो पहला दूसरा ऑप्शन है वो इतना मतलब नहीं बैठ रहा है, शायद लास्ट के 2 ऑप्शन बैठ जाएंगे। तो आप दोनों में से कौन सा पिक करें, और दोनों में से क्या पिक करें जिससे हमें इजी हो जाए ये शो करना कि X प्राइम भी है और इन लोगों से अलग भी है? Last one will never be a prime, the product of all. ओके, दिस विल Because नेवर बी अ प्राइम। the condition of prime is that it should not have any factor other than itself and one. So it will not be a prime. Yes, yes, amazing, yes. So the last one cannot be a prime. Totally cool. So is the summation one is a prime? Can you show that the sum of PIs will be prime? We cannot be sure of that. Just think about an example, अगर आप श्योर नहीं हो। क्या हम ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि सम ऑफ प्राइम प्राइम ना रहे या हमेशा ही प्राइम रहेगा? 7 + 2 is not prime. 7 + 2 is not prime, yes. But 2 + 3 is prime. 2 + 3 + 5 is not prime. So 2 + 3 is 5 prime. So कुछ कुछ केसों में हो रहा है, कुछ कुछ केसों में नहीं हो रहा है। तो वी आर नॉट सर्टेन कि समेशन जब करेंगे तो हमें प्राइम मिलेगा ही मिलेगा। प्रोडक्ट में तो हमें श्योरली नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो डेफिनेशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? आई विल जस्ट ऐड दिस +1। समेशन में तो हमें एम्बिग्यूटी है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि कुछ केसेस में हो रहा है, कुछ केसेस में नहीं हो रहा है, तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि इन जनरल होता ही है। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है सिनेरियो में? मैंने बोला कि प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स प्राइम हो नहीं सकता, लेकिन मैंने उसमें एक जस्ट आई हैव एडेड 1 टू दिस नंबर। नाउ व्हाट डू यू थिंक? Yes, ma'am. Yes. Now I remember it is the prime number. दिस इज अ प्राइम नंबर? Because First ma'am, question. it is not divisible by any of the prime numbers in our set. Okay, yes. Yes, so there are 2 things we have to show. Ishan, I will come to what you are saying. First thing is, if this is a prime. Second thing is,
it is different from all other PIs. So now Ishan is saying this is a prime because it is not divisible by any other prime. Can you prove that, Ishan? Can you prove that this number P1 up to so on Pn product plus 1 is not divisible by any PIs? Because it will be giving a remainder of 1. It will give a remainder of 1. So So ma'am, it is not divisible. yes, Which I am not proves sure. it. Should I? Sorry, just a sec. If I remove this, then these things will be gone. Should I remove it or not? Remove it. I mean, you want to go to the next slide? I can actually go to the next slide. I No, think. wait. So I think it's fine. I mean, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. हम्म. आप Zoom tools मत यूज करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी. अच्छा, हाँ, सही बात है. तो वो ठीक तो कह रहे हैं कि 1 का रिमाइंडर आएगा, so therefore this number is not हाँ, divisible by any of the PIs. तो वहां तक तो ठीक है. yes. And therefore it is a prime. Therefore, it is a prime. But is it different from the P1 up to Pn? So I think I can go to the next slide because I have written this down clearly. Huh. So the next assertion which Abhishek is asking is, मैंने ये शो कर दिया कि ये जो सपोज यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, ये जो कैपिटल N इज नथिंग बट x, मैंने x यूज कर लिया पिछली स्लाइड में. दिस कैपिटल N इज नथिंग बट योर x विच वी वर टॉकिंग अबाउट. तो हमने ये शो कर दिया कि ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी भी अदर प्राइम जो हमारा एक सेट हमने बनाया था उससे डिविजिबल नहीं होता है. यही हमारी डेफिनेशन भी होती है प्राइम की. तो ये प्राइम नंबर है. हमारा यूनिवर्स ही है कि बस एनी प्राइम है हमारे पास. दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइम. नाउ डू यू सी दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर PIs? इट इज सर्टेनली, राइट? बिकॉज x इज, सपोज यहाँ पे मैं x कर देती हूँ, बिकॉज x इज 1 प्लस, सपोज P1 से मैं अलग दिखाना चाहती हूँ, सो इट इज 1 प्लस xp1 which is not P1. Here x is also positive. यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है अब जब बात कर रहे हैं इस पे. x को फिर से हम 1, सॉरी मैंने गलत नोटेशन यूज कर लिया. कैपिटल X is 1 plus kp1 where k is nothing but p2 up to so on pn. So which is not P1 again, 1 plus some k tilde p2, so it is not P2. So similarly it is not equal to any other PI. Is it clear from the definition of x that it is not any other PI? Yes, ma'am. Cool. So is this Yes, ma'am. solution clear for you? Yes, ma'am. Great. So now मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सोल्यूशन आपको बुक में दिखेगा ही, बार बार आप आओगे, आपको मतलब हमारा एम ये नहीं कि हमको सोल्यूशन निकालना है किसी क्वेश्चन का. ये तो आप गूगल पे सर्च करोगे तुरंत आपको 10 फाइल्स मिल जाएंगी जिसपे आपको सोल्यूशन लिखा होगा. व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन? हमने क्या ट्रिक्स, क्या चीजें सीखी हैं इस क्वेश्चन से, वो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम यही ट्रिक्स आगे वाले क्वेश्चंस में या जो भी अब हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करें उसमें यूज कर पाए. हमने ये इस क्वेश्चन में ये सीखा कि जब हम अपनी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर लेते हैं, पोयास का प्रिंसिपल लगाते हैं, सो हम अपनी लाइफ थोड़ी सिंपल करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं, वो हमें गाइड करता है कि हम आगे चल के क्या कर सकते हैं बड़ी चीजों में. और ये एक जो टेक्निक है अभी जो हमने सीखी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें आपने एक नया नंबर कंस्ट्रक्ट किया जिसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिए. सो ये जो +1 करने की टेक्निक है, ये आप जब भी नंबर थ्योरी का कोई भी कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्निक बार बार यूज होगी. कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इधर काउंटर एग्जांपल निकालना है या फिर हमें कुछ प्रूफ करना है, तो आप देखेंगे कि
ऐसी ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कुछ नंबर्स लिए उसमें ऐड कर दिया 1, ऐड कर दिया 4, ऐड कर दिया 5। ये जो नंबर ऐड किया है वो हम सोचेंगे कि क्या नंबर ऐड करके हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये जो टेक्निक है कि इधर प्रोडक्ट लिया और सम लिया और उसमें कुछ ऐड कर दिया और कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, दिस इज अ रियली like crucial kind of technique in number theory. You will see that again and again in many proofs in number theory. So I think इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमें मांगना नहीं है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से हमें सीखना यही है, छोटे से स्टार्ट किया फिर बड़े पे गए और कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एक नया डिजिट और नया नंबर। अगर हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कोई चीज हम गलत प्रूव करना चाहते हैं या कुछ सही प्रूव करना चाहते हैं, जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हम इस तरह की स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं कि अच्छा सम करने से क्या हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा या प्रोडक्ट लेने से, एंड देन ऐड समथिंग either 1, 2, 3 or anything. So from this I think we have learned this trick, this principle. Do you have any question in this? Do you have anything to add or do you have any question you can ask? I have just one small remark. As soon as we said that x is not divisible by any of the pi's, it was already clear that it has to be different from all the pi's because pi is divisible by pi. We did not need to say anything more after that. But anyway. Yeah. It was evident from that, but it's okay. अगर हमें नहीं दिख रहा है तो we can see कि क्या relation है pi और x में. But thank you to point that out, Abhishek. So let's now, we have seen contradiction को हमने देखा कि how the contradiction principle is in action. Now we will formally state what is contradiction. I think now there is nothing to make it clear. This definition is very I think from the example it's very clear that कि जब भी हमें कोई statement prove करने के लिए दिया हो, हम just मान लेते हैं कि not p, this is the sign for not p, कि जो भी statement था उसका negation हमने ले लिया है और हम assume करके चलते हैं कि वो negation ही true है और फिर हम कुछ absurd सा prove कर देते हैं। जैसे अभी हमने कुछ absurd सा prove किया कि लेके चले थे n लेकिन हमने एक नया दिखा दिया, and then जब ऐसा कुछ हम show करते हैं then we can conclude that p is true. One thing is to keep in mind that what is this negation p? So negation p is not the complete opposite of the usual sense. So इसका मतलब क्या है? You can read what is written, that if p is all monkeys are brown, then not p is no monkey is brown, but rather not all monkeys are brown, or in other words some monkeys are not brown. So ये एक crucial चीज है जो हमें याद रखनी है जब भी हम contradiction कर रहे हैं, कि जब भी हम उसका false statement ले रहे हैं तो हम literally total negation नहीं कर सकते हैं. We have to make some sense out of it. So this we have to keep in mind.